مبارک ہو، اور خداوند یسوع ناصری اسی طرح ہمارے چہروں پر مسکراہٹ لاتا رہے اور ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے، اور ہم اس کے جلال کے لیے اپنی زندگیوں کو استعمال کرتے رہیں۔ آج ہم سب خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند کے گھر میں حاضر ہوئے۔ ہم نے گلیوں میں کوچوں میں خداوند کے نام کو جلال دیا کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، ہمارا خداوند زندہ ہے، ہم سب کا خداوند زندہ ہے۔ کس کس کا خدا زندہ ہے؟ ہاللیلویا! بھرپور تالیاں بجائیں گے خداوند کے نام کے لیے۔ میرے سسر ذرا تصور کریں، اگر کسی قوم کا کوئی لیڈر ہو جو اپنی قوم کو، اپنی امت کو چلا رہا ہو، اور اچانک سے اس پر مقدمہ ہو جائے اور اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو وہ ساری قوم بےحال ہو جاتی ہے، افسردہ ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتی ہے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی، وہ مرجھا جاتے ہیں، ڈر میں ہوتے ہیں۔ یہی حال خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، وہ اسے اپنا بادشاہ مانتے تھے، خداوند مانتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی، تو اس کے بعد وہ سب شاگرد جتنے خداوند یسوع مسیح کو مانتے تھے، اس کے پیروکار تھے، سب پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ سب نا امید ہو گئے، وہ سب ڈر گئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے، ان کے چہرے اتر گئے اور نہایت ہی خوف میں مبتلا، چھپتے چھپاتے وہ رہ رہے تھے، ان میں کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن پھر تیسرے دن خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، اور جب وہ جی اٹھا تو وہ خواتین اور اس کے ساتھ وہ قیافہ اور 500 سے زائد لوگوں کی امید جاگ گئی اور وہ خوشی سے بھر گئے، وہ مضبوط ہو گئے۔ اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی میرے عزیزو نا امید ہوتے، ہم بھی یوں جمع نہ ہوتے، ہم بھی ہوشنا کے نعرے نہ مارتے۔ لیکن ہمارا خداوند قبر اور موت پر بھی فتح پا گیا، اور موت پر بھی اس کا اختیار ہے، موت بھی اسے اپنے اختیار میں نہ رکھ سکی، قبر بھی اسے اپنے اندر نہ رکھ سکی، قبر کا پتھر بھی وہاں پر نہ رک سکا، وہ بھی لڑک گیا، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گیا۔ آج ہمارا فخر خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری امید خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری مضبوطی خداوند یسوع مسیح ہے۔ آج ہم پر امید ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ دوسری قوموں کے سامنے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے۔ ان تمام کے خدا قبروں میں ہیں، من و من مٹی کے نیچے ہیں، لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے۔ وہ قبر اور موت پر بھی فاتح ہوتا ہے، وہ فتح یاب ہوا ہے، اور وہ زندہ ہے اور جلد آنے والا ہے۔ وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے، اس نے جو کچھ کہا وہ بھی کیا، اس کے سارے وعدے جو کچھ اس نے کیے ان پر وہ پورا کا پورا اترا۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں جو ناممکن یا نامکمل ہو، بلکہ وہ اپنے تمام وعدوں میں پورا اترا۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیے۔ متی رسول کے مطابق انجیل بیان اس کا 28واں باب پہلی 10 آیات ہم آج دیکھیں گے، ان میں سے سیکھیں گے۔ آج صبح خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا لیسن دیتے ہیں۔ متی رسول کے مطابق انجیل بیان اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو غور سے سنیں یہ واقعہ کیا ہوا تھا، اور آج ہم امید کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور زندہ خدا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور صبر کے
सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन खूब फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनको सलाम कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना सच्चा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत ठहरे। खुदा यीशु मसीह का अचानक से जी उठना उन खवातीन के लिए, शागिर्दों के लिए मजबूती का बायस बना, हैरानी का बायस बना। वो उम्मीद से भर गए कि उनका खुदावंद कुदरत वाला खुदा है। दुनिया में मेरे से तो और भी बहुत से लोग जिंदा हुए, लेकिन वो दोबारा मर गए, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और वो पहलौठा है, और उस पर जो ईमान रखते हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे। जो उस पर ईमान रखते हैं, जब वो आएगा तो उन्हें अपने साथ अपनी बादशाही में ले जाएगा। जो उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं रखते, आज भी उनके लिए ये बात मेरे से तो हैरानी की है कि कैसे हो सकता है कि कोई जिंदा हो जाए, कैसे हो सकता है कि कोई मौत पर भी पता पाले, मौत पर भी उसका इख्तियार हो, लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं ये उनके लिए हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद अपने कौम में सच्चा खुदावंद है। उसने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। उसके तमाम मौजज़ात, तमाम अजायब हम जानते हैं। अनाजील में हमने पढ़ रखा है कि वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। हर चीज उसके इख्तियार में है। हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं, और उसने अपने इख्तियार से जान दी। कोई भी ऐसा नहीं जो अपने इख्तियार से जान दे सके या अपने इख्तियार से दुनिया में आ सके। ये मेरा और आपका वाहिद यीशु मसीह है, जो अपने इख्तियार से दुनिया में आया और अपने ही इख्तियार से उसने दम दिया। अपने ही इख्तियार से वो सब कुछ करता है, और सारी दुनिया का इख्तियार भी उसी के पास है। 26वें बाब में, मत्ती की इंजील के 26वें बाब में आखिरी आयत में हम देखते हैं, वहां पर यूं लिखा है, दूसरे दिन जो त्यागी के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शरीर आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहले वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहले वालों के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। वो खुदा यीशु मसीह को झूठा साबित करना चाहते थे। जो उस पर ईमान नहीं रखते थे, आज भी जो उस पर ईमान
अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते मेरे चीजों तो हम ना उम्मीद होते, मायूस होते, हम पर भी खौफकारी होता, हमें भी जिंदगी की उम्मीद ना होती, हमें भी दूसरी जिंदगी का ना पता होता, हमें भी कोई ऐसी उम्मीद ना होती। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया ताकि हम पुरउम्मीद हो जाए, हम मजबूत हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो जाए और हम उस पर ईमान रखें। जब हम उस चट्टान पर ईमान रखेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे, हम उसे मजबूती से थामे रखेंगे तो ना सिर्फ इस जिंदगी में बल्कि आने वाली जिंदगी में भी हम आगे होंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे और वो हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है। मुकाशवा में लिखा है पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसे मारा था, वो भी उसे देखेंगे, जो उस पर ईमान नहीं भी रखते वो भी उसे देखेंगे, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाला है और जो उस पर ईमान रखते हैं उनको साथ लेकर जाने वाला है। वहां पर मुकाशवा की किताब 22वें बाब में आखिर पर लिखा है कि वो जल्द आने वाला है और जब वो आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हम खुश हैं कि हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद मुर्दों में से जी उठा और उससे कब्र और मौत पर फतह भी पाली। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 2 से 7वीं आयत तक यूं लिखा है, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 2 आयत से मैं पढ़ देता हूँ। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को दिखाई दिया। खुदावंद यीशु मसीह इनफरादी तौर पर भी नजर आए लोगों को और इज्तिमाई तौर पर भी नजर आए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की गवाही हो, कोई ये ना कह सके कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह ज़ाती तौर पर भी उनको नजर आए, उनको मिले, उनके साथ रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। और आज हम सब भी इसलिए जमा हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिरी तौर पर भी जिंदा हुए और वो कब्र और मौत पर फातिह हैं। आज हम गवाही देते हैं, दूसरी कौमों के सामने हम गवाही दे सकते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, उसने मौत पर फतह पाली है और वो फतह याद है, फतह उसी की है, उसने हमसे प्यार करके साबित किया। अब हमारी बारी है कि हम भी उससे अपने प्यार को साबित करें। उसने अपना प्यार साबित किया, वो दुनिया में आ गया, पेशन गोइयों के मुताबिक मसलूब हुआ और फिर अपने कहने के मुताबिक इख्तियार से मुर्दों में से आज के दिन जी उठा। और अब हमारी बारी है कि हम भी अपना प्यार उसको दिखाएं। उसने अपना प्यार हमें दिखा दिया है, अब हमारी बारी है कि हम भी उसके लिए जिएं और उसके लिए मरें, उसके नाम के लिए हम लोगों को तैयार करें, उसके शहीद बन जाएं और उसके नाम की गवाही दें और उसका झंडा ऊंचा करें, क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर वो ही है, हमने उस पर ईमान रखना है। अब हमें गुनाहों में जिंदगी गुजार
ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری زندگی گناہ آلودہ ہے تو میرے عزیزو ہمیں گناہ میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. ہم اپنے گناہ اس پر لا دیں. وہ ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے دنیا میں آ گیا. جب ہم اپنے گناہ اس پر لا دیتے ہیں تو پھر ہم ہلکے ہو جاتے ہیں, ہم نڈر ہو جاتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے دنیا میں آیا اور ہماری نجات بن گیا. وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہر وقت ہماری فکر بھی کرتا ہے.